दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग केवीएस एंड वीएस के पीआरटी के पूरे 60 क्वेश्चंस को वन शॉट में सॉल्व करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें अपने को आर्टिकल फिल करना है। राइट द बिल वाज पास्ड इन डैश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नो आर्टिकल। ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरली जब हम रेफर करते हैं जो कोई भी इंस्टीट्यूशन जैसे पार्लियामेंट वगैरह को, तो वो प्रॉपर नाउन होता है और उसमें हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। सो राइट आंसर वुड बी नो आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। राइट, तो ये क्वेश्चन अपने को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच की ओर जाना है। तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो होगा 2। इस बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है। राघव सेड दैट he would do that then or never। राइट, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने को फिर से प्रीपोजिशन फिल करना है। सो फॉर दिस द राइट आंसर वुड बी for this one। Let's move to question number 4। So question number 4, the right answer would be easily। right, बिल्कुल सही भरा है बच्चे ने। right, so this is the answer 4। now let's move to question number 5। for question number 5 दोस्तों, my friend Reena along with her sister। okay, right, so for this it would be is going to Bombay। right, for so this is now question number 6। so in the following sentence identify the part which contains an error। okay, so we have to identify the error in this। so for this the correct answer would be B। right, because the phrase neither of always takes a singular verb। okay, so therefore R is going to be incorrect and should be replaced with is going। all right, so let's move to question number 7। so for question number 7, the car that he has bought is very expensive। okay, so for this we have okay, so for this adjective would be the right answer। right, we have to identify the clause of underlined part, so adjective would be the correct answer। now let's move to question number 8। so we have to choose the correct option to fill in the blank with appropriate model। so we have to choose the model for question number 8, and for this would be the right answer he hoped that he would pass। right, now let's move to question number 9। so we have to fill correct noun in this। right, I am not one of those who will trust everyone whom they meet। right, whom they meet, this is the correct pronoun। okay, so let's move next part, question number 10। for the question number 10, in the following sentence choose the option which correctly identify the part of a speech of the underlined word। okay, so we have to identify the part of a speech, and the food is good enough। right, for this, so this is correct, the guy has answered correct, or whosoever is this question paper is। right, now let's move to question number 11। so for question number 11, my father unlike my uncles is strict। so correct है। so for question number 12, we have to go with the fill in the blank। so इसका आंसर होगा his। okay, so this many a soldier has met his death in the battlefield। all right, so question number 13। question number 13 के लिए we have he is dash। right, and cannot be used। ठीक है, cannot be used in the fill in the blank होगा, कौन सा नहीं we can use, so we cannot use this good than। okay, now question number 14, choose the option in which the given sentence has been correctly changed from passive to active। passive to active इसमें कौन सा correctly change होता है। so okay, so this is correct, the shall I ever forget those happy days, so this is correct। okay, for question number 15, this is fill in the blanks and we have to fill the correct conjunction in this। it is nothing else space flattery। right, so for this but is the right, it is nothing else but flattery, easy one। right, now let's move, we have this where we have to read, इसको पूरा पढ़ के अपने को इस आंसर देना है, तो क्विकली मैं पढ़ लेता हूँ कभी कमल विषय। okay, so for this
द फर्स्ट इज गद्यांशों के अनुसार उत्साह की उत्पत्ति होती है आनंद से उत्पन्न स्फूर्ति के लिए। फॉर दिस टू इज द राइट आंसर। लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 17। गद्यांशों में प्रमुख प्रतिदिन का आशय है। ओके, सो फॉर दिस द राइट आंसर इज तत्कालीन लाभ दूसरों में। ओके, भविष्य में सुख या लाभ की आशा से किया गया प्रयास। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव गद्यांशों के अनुसार बड़ी कामना पूर्ण हो जाने पर। ओके, फॉर दिस राइट आंसर इज वह कार्यों को हर्ष और तत्परता से करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए है, पर उस आनंद के कारण एक ऐसी स्फूर्ति उत्पन्न होती है। राइट, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 19, तेजी। यह स्फूर्ति का बेसिकली अर्थ शरीर और मन से आने वाली सक्रियता है, चुस्ती या तेजी से है। राइट, सो इसलिए इसका आंसर तेजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ठलुआ क्लब निबंध के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। आई थिंक सो, या बाबू गुलाब राय इज द राइट आंसर। राइट, ये जो है ठलुआ क्लब हिंदी के एक प्रसिद्ध विद्वान और निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय। उनका एक बहुत ही लोकप्रिय हास्य व्यंग और वैचारिक निबंध संग्रह है। ठीक है, सो फॉर दिस सारे का मैं एक्सप्लेनेशन आई एम नॉट एबल टू गिव बिकॉज हम लोग के पास कम टाइम है इस वीडियो के अंदर। राइट, अभी मैं चाहता हूँ आप लोग को आंसर्स पहले अवेलेबल करा दूं। राइट, क्वेश्चन नंबर 21, यथार्थ का संधि विच्छेद है। राइट, तो यथा जोड़ अर्थ करेक्ट है, इस बच्चे ने लगाया है। क्वेश्चन नंबर 22, ज्ञानश्रिया शाखा के प्रमुख कवि हैं। राइट, तो ये कबीरदास हैं दोस्तों। ठीक है, दिस इज कबीरदास नॉट तुलसीदास। ठीक है, राइट, एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 23, निराला डैश हिंदी मुक्त छंद। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 23, निराला को ओके में एंड के लिए, सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। ओके, इतिहास लेखन सर्वप्रथम। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 24, गाशा दत्तासी, I think so this is the right answer. Now let's move question number 25, तीक्ष्ण का विलोम। तीक्ष्ण का विलोम क्या है, तो इसका विलोम होगा दोस्तों मंद, क्योंकि तीक्ष्ण का अर्थ होता है तेज या धारदार, जबकि इसका विपरीत मंद होगा या धीमा या कुंद होगा। राइट, तो इसमें अपने को मंद जो है अपने को ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 26, पर्यायवाची की दृष्टि से सही विकल्प है। राइट, सही विकल्प अपने को इसमें चूज करना है कि कौन सा होगा। तो इसमें पक्षी, खग और विहंग ये जो है समानार्थी है। अन्य विकल्प जो दिए गए हैं, अन्य ऑप्शन जो दिए गए हैं वो अलग अलग अर्थ वाले शब्द मिल गए हैं। ठीक है, जैसे सिंधु समुद्र, मयंक चंद्रमा, केसरी शेर। राइट, तो वो चीजें हैं। सो फॉर दैट वी विल गो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। मेरे बगीचे में एक डैश लगी है। ओके, सो मेरे बगीचे में सो इसमें एक का प्रयोग यहाँ पे। राइट, आप देख रहे हैं एक लगा हुआ है, देन इसमें वी कैन यूज, तो यहाँ पे संज्ञा का भी हम लोग को एक वचन ही फिर यूज करना पड़ेगा आई थिंक। सो फॉर दिस लता इज द राइट आंसर। ठीक है, देन वी हैव 28, वर्तनी की दृष्टि से हिंदी में 28 के लिए मानक संख्यावाचक शब्द है। सो फॉर दिस हिंदी वर्तनी के अनुसार 28 शुद्ध रूप में 28 लिखा जाता है। राइट, तो ये तो इजी है। सो फॉर दिस 28, दिस इज द राइट आंसर। वो व्यक्ति की योग्यता ही उसे आगे तक ले जाती है में योग्यता संज्ञा के किस भेद को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 29, योग्यता तो भाव है। राइट, एलिजिबल आई मीन कौन कितना योग्य है वो चीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, 11 वर्ष का समय कहानी के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं। ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करवाई गई थी। तो आई थिंक सो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लेट्स मूव। अब आ गया मैथ्स दोस्तों, मैं इसका फटाफट आंसर बताने वाला हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे आई थिंक सो दिस वुड बी द राइट, है ना। तो फॉर दिस -3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 32। if the cost okay, so for this question number 32, this is 555.20, ठीक है। then question number 33, for question number 33 this is profit and loss का question, ठीक है। and then we have I think so इसका answer 300 is the right answer for this, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर सिस्टम का है ये तो, ठीक है। 2 पॉजिटिव इंटीजर 679 है, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों 12528, कहाँ पे ये है, ठीक है। नाउ 10, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 35 ये फ्रैक्शंस का है, और इसमें अपने को डिफरेंस निकालना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में, ठीक है। और फॉर दिस द राइट आंसर इज 5/33, ठीक है। बच्चे ने बिल्कुल ठीक करा है, राइट। then we have question number 36, when x is subtracted, so question number 36 ये प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में समानुपात जिसे बोलते हैं। and for this the right answer is 23, ठीक है, right। and let's move question number 34, what is the measure in degrees of an angle if 5 times is its complement is 150 degree less than that twice। okay, so for this the right answer is 35, ठीक है। this is the right answer। and then we have next question average, ठीक है। एवरेज से अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, एंड फॉर दिस द राइट आंसर इज 19, बच्चे ने बिल्कुल ठीक मारा है इसका जवाब। और क्वेश्चन नंबर 30 एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 38 का 19, ओके राइट, बिल्कुल ठीक है। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 39, अपने को ये इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्वेश्चन है, आय व्यय और बचत का क्वेश्चन है, एंड इंक्रीज्ड इनकम अपने को निकालना है, ठीक है। सो फॉर दिस द राइट आंसर इज 40,680, एंड बिल्कुल बच्चे ने सही जवाब मारा है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर ये बॉड मास का क्वेश्चन है, ठीक है। सो फॉर दिस द राइट आंसर इज 2 7/20, बिल्कुल ठीक करा है बच्चे ने कैलकुलेशन भी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 41 में, the sides of triangular park, okay, so for this question number 41 this is radius and circle है, ठीक है। अपने को radius, ठीक है, filled, and the sides of triangular park, okay, so for this the right answer is okay, so we have this times 5 1.5, okay, so for this is a bit tricky I guess, right। for this the question answer is 14 meter, ठीक है। okay, for question number let's move 42, and this is perfect cube, ठीक है। this is perfect cube का question number 42, and for this the right answer is 50, बिल्कुल बच्चे ने सही मारा है, ठीक है। and then we have this if the mean of the data, right, हम लोग को sum of the mode and median of the data निकालना है। then for this बच्चे का आंसर this is बच्चे ने आंसर लगाया नहीं है, but I think so this is 52, ठीक है। then let's move question number 44। question number 44 के अंदर है अपने को if f v and e denote the number of faces vertex and edges, okay, for question number 44 this is pentagonal prism, ठीक है। थोड़ा question tricky है, right, but again this is pentagonal prism, ठीक है। and for this the right answer would be 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते, if 9 digit number this is divisible by this, what is the value of 3x plus 2y? so for question number 45 this is based on divisibility rule, ठीक है, right, so this is based on divisibility rule,
एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 45 द राइट आंसर इज 21। बिल्कुल बच्चे ने सही मारा है इसका जवाब। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 46 जहां पे अपने को शैडो एंड सन पोजीशन निकालना है, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर द शैडोज एट मॉर्निंग एंड लॉन्ग एंड short and shadows at evening are long. Again, statement that we have the evening shadows appear in opposite direction of morning shadows. ठीक है, so for this the right answer is one only. A and B both are correct. Shadows at the morning are long, and shadows are short, and shadows at evening long. Again, the evening shadows appear in the opposite. Okay, this is one only, right? So then move. Let's move. Then we have question number 47 in front of us. Again, this is latitude and climate का है। तो for this the answer is again one, ठीक है। A and B both are correct, ठीक है। A and B क्वेश्चन नंबर 47 का ठीक है आंसर इज वन। A and B both are correct, ठीक है। एंड लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 48। For question number 48, which of the following plant seed require light to germinate? ठीक है। So for question number 48, this is petunia है इसमें, हाँ ठीक है ना। Let's question number 49, in which of the state सरहुल, right? सरहुल काफी एक फेमस फेस्टिवल है, ठीक है ना, ट्राइबल कल्चर का, और आई थिंक सो इट्स ऑनगोइंग भी है करेंटली। एंड फॉर दिस झारखंड इज अनडाउटेडली द राइट आंसर, ठीक है। झारखंड राज्य का ये सबसे फेमस जो है ना आदिवासी का फेस्टिवल है, और ये वसंत स्प्रिंग टाइम के दौरान मनाया जाता है जब साल के पेड़ के नए फूल आते हैं, राइट। ये बेसिकली एक प्रक्रिया है, पूजा का पर्व है, राइट। एंड आई गेस तो सरहुल इज आल्सो गोइंग ऑन करेंटली इन झारखंड, ठीक है। आई गेस संथाल ट्राइब्स मनाते हैं, बट सरहुल इज द फेस्टिवल ऑफ झारखंड, दैट्स द होल क्रक्स, ठीक है। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 50, है ना। और क्वेश्चन नंबर 50 में है भाई, I mean, which of the following condition will be suitable to make aluminum foil to float in the water, right? So for this, by spreading out of the making it cup. Okay, so for this, the right answer is, this is buoyancy and density का question, ठीक है। The right answer is 2, ठीक है। A, B and C spreading out of the foil फर्स्ट होगा, देन बाय मेकिंग इट लाइक कप शेप, ठीक है, एंड देन बाय लूजली फोल्डिंग, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस 50 का 2। देन विल मूव। अब अगला क्वेश्चन अपने पास जो है दोस्तों वो 51 है, और ये क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन का है जहां पे आपको हड़प्पन साइट्स को मैच करना है। सो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, वन इज द राइट आंसर, हरियाणा, ठीक है। लोथल गुजरात में है, ठीक है। और जो है आपका, तो वन है राखीगढ़ी हरियाणा में है, और धोलावीरा जो है दोस्तों गुजरात की काफी फेमस साइट है ना। लोथल भी काफी फेमस साइट है, और धोलावीरा भी गुजरात की साइट है, और कालीबंगन तो राजस्थान में हो गया। धोलावीरा जो है दोस्तों वो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काफी फेमस है, और गुजरात के कच्छ जिले के अंदर ये पड़ता है। और लोथल जो है गुजरात मैंने बताया ही, और राखीगढ़ी जो है वो बेसिकल इंडस वैली सिविलाइजेशन का काफी फेमस जो है स्पॉट है, और फेमस जो साइट है बेसिकली। और ये करंटली दोस्तों जो है हरियाणा के हिसार में जिले में, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। तो फॉर दिस द राइट आंसर इज वन, ठीक है। लेट्स मूव। रोज प्लांट इज कॉल्ड, बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है, दिस इज श्रब, ठीक है, एंड दिस इज द राइट आंसर। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 53। Read the correct statement. Statement 1, flash flood is sudden local flood often caused by cloudburst. Okay, landslide. Okay, this question is natural disaster. Geography से easily solve कर सकते हैं इस question को, and for this the right answer is A और B both are correct। बच्चे ने बिल्कुल ठीक लगाया है इसका जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है अपने पास, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, सारे एग्जाम्स का फेवरेट है, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। फॉर दिस what we have to do is select the code and correct, and panchayati raj system works at three from bottom, the village, the block and the district panchayat samiti वर्क्स एट विलेज लेवल। स्टेटमेंट बी तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। सो ए सही होगा और बी गलत है,
ठीक है, ए सही है। पंचायत समिति जो है ये ब्लॉक लेवल पे होता है, ठीक है। तो अपने को ये तो कट गया, बी तो नहीं होगा, तो बी तो रॉन्ग हो गया, इसका 54 का 3 होगा, ठीक है, 54 का 3। नाउ लेट्स मूव लूनी के बारे में, अगला क्वेश्चन है गेस, ठीक है। अपने पास लूनी रिवर है, वो ओरिजिनेट हो रही है अरावली रेंज राजस्थान, इज ओनली इंडियन रिवर दैट डज नॉट ड्रेन इनटू सी, ठीक बात है, राइट, है ना। एंड देन वी हैव द इसका एक्सप्लेनेशन, लूनी रिवर एंड्स अप इन द मार्शी लैंड्स इन द रन ऑफ कच्छ इन द गुजरात, राइट। सो फॉर दिस आई गेस सो द बच्चे ने बिल्कुल ठीक जवाब लगाया है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग binder is added to the painting color made from the raw materials from the soil, minerals, vegetable, flowers, fruit, roots, charcoal. So for this question number 56, दूध, right, milk is the correct answer. Question number 57 पे चलेंगे, then we have this column, we have to match, ठीक है। तो for this the right answer should be रक्षाबंधन फुल मून में मनाते हैं, ओके, रक्षाबंधन फुल मून में मनाते हैं। और जो है दोस्तों दिवाली जो है अपने को न्यू मून पे देखने वाली मिलती है, ठीक है। एंड ओके, सो फॉर दिस द राइट आंसर इज 4, ठीक है, ए का 3, बी का 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन अष्टांगा योगा सोशल डिसिप्लिन इज कॉल्ड एज, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 58, राइट, अष्टांग योगा के बारे में अपने को ये क्वेश्चन है, यम इज द राइट आंसर, यमा, ओके, दिस फॉर दिस यम और यमा, ठीक है, जैसे आप स्पेल करें इसको, वो दैट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ 500 मिलीलीटर, दिस इज इजी, राइट, एब्रिविएशन है, सो दिस इज थर्ड undoubtedly 500 ml. In which state or UT, क्वेश्चन नंबर 60 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, in which state UT of India उगाड़ी पचाड़ी is used as a traditional food। दोस्तों ये काफी अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा, इंडियन ट्रेडिशन एंड कुजीन से थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। एंड उगाड़ी काफी फेमस फेस्टिवल भी है तेलंगाना और आंध्रा के अंदर, राइट, इवन कर्नाटका के अंदर। और आप हमेशा सोशल मीडियाज पे जब भी ये फेस्टिवल आता हो तो इनके वायरल फोटोज भी देखते होंगे। सो दैट्स ऑल दोस्तों, हम लोगों ने ऑल 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो के अंदर पूरे एक्सप्लेनेशंस, आई मीन इसके आंसर्स मिले होंगे। आपके कुछ कमेंट्स होंगे तो बिल्कुल करिएगा, कोई क्वेश्चंस में आपका डाउट होगा तो बिल्कुल करिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेके आऊं, क्योंकि मैं फिलहाल आपको ये सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप अपने आंसर्स को जल्दी से मिला सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।